موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اچھا سر، یہ تو بڑی خبر ہے۔ اور ان کی کل تعداد 33 ہے۔ بلوچستان کے بولان ٹنل پر یرغمال بنائی گئی جعفر ایکسپریس کو دہشت گردوں سے چھڑانے کا آپریشن مکمل۔ سیکیورٹی فورسز نے تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ایف سی کے 4 جوان شہید۔ یرغمالیوں کی بازیابی کے آپریشن سے پہلے ہی دہشت گردوں نے 21 مسافر شہید کر دیے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تصدیق۔ آپریشن میں آرمی، ایئر فورس، ایف سی اور ایس ایس جی نے حصہ لیا۔ ٹرین میں 440 مسافر سوار تھے جنہیں مرحلہ وار بازیاب کرایا گیا۔ کوئٹہ سے 5 بوگیوں پر مشتمل ریلیف ٹرین مچھ کے لیے روانہ۔ گزشتہ رات 80 مسافروں کو مچھ پہنچایا گیا تھا۔ مچھ سے 57 مسافروں کو بسوں کے ذریعے کوئٹہ لے جایا گیا۔ جعفر ایکسپریس گزشتہ روز کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ 9 بوگیوں پر مشتمل ٹرین پر 400 سے زائد مسافر سوار تھے۔ دہشت گردوں نے بولان ٹنل میں ٹرین کو ہائی جیک کر لیا۔ مسافروں کے مطابق سب سے پہلے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پھر دیر تک شدید فائرنگ ہوتی رہی۔ ٹرین میں داخل ہونے کے بعد مسلح افراد مسافروں کے شناختی کارڈز بھی چیک کرتے رہے۔ کوئٹہ، لاہور اور پشاور ریلوے اسٹیشنز پر جعفر ایکسپریس سانحے کی معلومات کے لیے انفارمیشن ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ بلوچستان سے اندرون ملک ٹرین سروس 3 دن کے لیے مکمل معطل۔ ہفتے میں ایک بار ایران کے شہر زاہدان جانے والی ٹرین بھی نہیں چلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا رابطہ۔ جعفر ایکسپریس واقعے پر بریفنگ۔ پوری قوم اس بزدلانہ حملے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر صدمے میں ہے۔ بزدلانہ حملے پاکستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف شہداء کے خاندانوں سے اظہار افسوس۔ سانحہ جعفر ایکسپریس پر وزیر اعظم کا ہنگامی طور پر کل کوئٹہ کے دورے کا اعلان۔ امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے متوقع۔ یہ خون جو بہایا گیا ہے، اس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دیر سے نہیں ہے، بہت جلدی ان قریب انشاءاللہ۔ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، وائلنٹ کو وائلنٹ سے ٹریٹ کریں گے، جو عام بلوچستانی ہے اس کو گلے لگائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے لیے بہتر گورننس کا ماڈل پیش کریں گے۔ جو تشدد اور ریاست توڑنے کی بات کرے گا، ریاست اس کا قلعہ کما کرے گی۔ کالعدم بی ایل اے تشدد اور بندوق کی زور پر نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ کیا معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارنے کی اجازت دے دیں؟ چن چن کر بلوچوں کو مخبری کے نام پر مارا جا رہا ہے۔ وہ فوجی جو چھٹی پر جا رہا ہے، نہتہ تصور ہوتا ہے۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ کون ہے جو قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی صوبائی اسمبلی میں برس پڑے۔ ایک بار پھر بات چیت کی پیشکش۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمیں لڑنا پڑے گا۔ میں ان کا مذمت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب تک ان کا صفایا نہیں ہوگا، ملک میں امن نہیں ہوگا۔ ملک اور صوبے کے لیے اب دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سب کو مل کر یہ جنگ لڑنا ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی کے رکن علی مدد جتک کا دو ٹوک موقف۔ اب ضمیر نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ خاموشی کا مطلب یہ ہوگا کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر خوراک نور محمد بھی میدان میں آ گئے۔ سب کو ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ۔ خیال میں ہمیں سب کو تھوڑا سا ہوش لینا چاہیے اور تھوڑا سا اپنی جو ذمہ داری، ہماری جو قبائلی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری جو بحیثیت ایک مسلمان جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے اس طریقے سے نبھانا چاہیے۔ ہماری ضمیر جاگنا چاہیے، ہمیں اس میں خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں جو کل ایک سانحہ ہوا ہے، ہم لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ 80 دہشت گرد اکٹھے ہوتے ہیں یا 50 ہوتے ہیں یا 100 ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے کیسے ہیں؟ عمر ایوب کی بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ سوال یہ ہے کہ اتنے دہشت گرد جمع کیسے ہو جاتے ہیں؟
पी टी आई के तो कहीं 5 कारकुन जमा हो जाएं तो पुलिस डंडे और आंसू गैस के शेल लेकर पीछे पड़ जाती है। अपोजिशन लीडर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। ये मुश्तरका दुश्मन है और पाकिस्तान के दुश्मन इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तान की उस तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। एहसन इकबाल का बलूचिस्तान वाक़े पर इजहार अफसोस। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कोई भी तन्हा दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सकता। वजीर मंसूबाबंदी की पेशावर में गुफ्तगू। सपोर्ट करते हैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शंस हों। जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, जो कि इन सारे मसाइल को हल कर सकता है, क्योंकि उसकी जो वो है जो पॉपुलैरिटी है वो इस पूरे मुल्क में है, और वो एक वाहिद जमात है जो कि पूरे सूबों पे मुश्तमिल है। वो एक कोई इलाकाई जमात नहीं है, तो इसलिए खान साहब को फौरी रिहा किया जाए। शिबली फराज का दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बानी पीटीआई को मुल्क का मकबूल तरीन लीडर करार दे दिया। सिर्फ वही मसाइल को हल कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमा की जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के वाक़यात को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करते। सियासी इख्तलाफात के बजाय पाकिस्तान का सोचना चाहिए। साहबजादा हामिद रजा का दो टोक पैगाम। मसले का हल मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना है, और इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि दहशतगर्दी के किसी वाक़े को हम सपोर्ट कर दें। मैं सख्त तरीन अल्फाज में कल होने वाले वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। BLA हो, वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के शहरियों पर हमला करती है, मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रख के पाकिस्तानियत की बात करनी है। एक वक्त से, एक तवील अरसे से हमने ये सोचा है कि बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से हल होगा, लेकिन यूँ लग रहा है कि एक तवील अरसे के बाद अब हमें ये कॉन्क्लूड कर लेना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला एस्टैब्लिशमेंट हल नहीं कर सकेगी, और लिहाजा इसको वापस सियासी कुव्वतों को देना होगा। तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात खत्म करके एक पेज पर आएं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई मिलकर बलूचिस्तान को संभालें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तजवीज़। आलमी बरादरी का भी जाफर एक्सप्रेस सानहे पर इजहार तशवीश। हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है, जिसे अमरीका ने एक आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है। अमरीकी सिफारत खाने का बयान। मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन की सफीर रेना क्योनिका का भी सानहे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। चीन का दहशतगर्दी से निपटने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। रूस की जानिब से भी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। रूसी सफारत खाने ने हमला वहशियाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पेन पर हमला और शहरियों को यरगमाल बनाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी सियासत का घिनौना चेहरा दिखाया। इसहाक डार पीटीआई की मुबैना सोशल मीडिया मुहिम पर नाराज। चोरी के जुर्म में सजा काटने वाले सियासी ग्रोह का सरगना फौज को टारगेट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ के वार। पीटीआई हर गुजरते दिन के साथ वतन दुश्मनी का नया सफर तय कर रही है। अता तारड़ भी बोल पड़े। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। सोशल मीडिया पर मुबैना मनफी प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम पर अलीमा खान की आज JIT में तलबी। खातून रहनुमा नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई। JIT ने अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब को कल तलब कर लिया। मूडीज ने पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मजबूत कर दी। एक साल में इंतहाई कमजोर माशी हालत बेहतर हुई। बैंकिंग सेक्टर की मजबूत आउटलुक रिपोर्ट हुकूमती कारकर्दगी की अक्कास है। तवीलुल मुद्दत कर्जों की अदायगी इस वक्त भी खतरात से दो चार है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जारी। रवां साल शरह नमो 3% रहने की तवक्को का इजहार।
वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात, मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर, वज़ीर आज़म की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुस्तकिल पायदार उड़ान पे पाकिस्तान की मईशत को डालने के लिए इस प्रोग्राम को कौमी और सूबाई मुशावरत के साथ हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस पर अमल दरामद करें। मुल्क को सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक्तिसादी मार्च की जरूरत है। एहसन इकबाल की पेशावर में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीर के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बरामदात पर मबनी मईशत के लिए सूबों का ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं पहली दफे कर रहे हैं। पहली दफे अगर इस मुल्क में किसी ने किया था तो वो कायदे आज़म ने ये मुल्क बना के किया था, और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो बातें आगे बढ़ाई थी। हम उन्हीं के विजन पे उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंध में एक साल के दौरान 196 सड़कें तामीर की गईं। सैलाब से मुतासिर 120 सड़कों की तामीर नौ की गई। तालीम के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के साथ बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पेश कर दी। गुज़िश्ता 12 मार्च को काबीना ने हलफ उठाया, आज एक साल मुकम्मल हो गया। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत काम कर रही है। गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। मुराद अली शाह का रमा साल गंदम ना खरीदने का ऐलान। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ आलिया हमजा की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। ज़ाती तशहीर के लिए पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल गैर कानूनी और गैर आईनी है। अदालत हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे। दरख्वास्त का मतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। स्कूलों में तलबा की तादाद में 52% इजाफा। असातिज़ा की तादाद 89% बढ़ गई। महकमा दाखिला ने गुड टच बैड टच से मुताल्लिक आगाही बच्चों के निसाब में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। जस्टिस मोहम्मद अली का मुकालमा। सिटी कोर्ट कराची ने इंसाफ हाउस खाली कराने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पुलिस और दीगर इदारों को 15 मार्च तक इंसाफ हाउस खाली कराने से रोक दिया। वकील तहरीक इंसाफ खालिद महमूद एडवोकेट ने अदालती ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। वफाकी वजीर सेहत का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो का दौरा। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पोलियो का खात्मा कौमी जिम्मेदारी करार। लाहौर के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स गुत्थम गुत्था। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक मैदान जंग बन गया। एक दूसरों को थप्पड़ें और मुक्के मारते रहे। यंग डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस्लामाबाद के इलाके बहारा कहूअठाल चौक में कब्जा माफिया ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया। पुलिस ने बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग का तबादला भी जारी। चौदह मार्च को अलहमरा लाहौर में होने वाला पंजाबी कल्चर मेला मुलतवी। मुल्की हालात के पेश नजर फेस्टिवल को मुलतवी किया जा रहा है। वजीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम। गुजरावाला FIA जोन की नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाइयां। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इश्तिहारी समेत 2 एजेंट गिरफ्तार। मंडी बहाउद्दीन में सुथरा पंजाब प्रोग्राम वर्कर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर आ गए। मंडी बहाउद्दीन गुजरात रोड पर रुकावटें और कूड़ा करकट फेंक कर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। शुगर मिल्स मालिकान की मनमानियों की वजह से चीनी के दाम बेकाबू। लाहौर की मार्केट में चीनी 10 रुपए मजीद महंगी। फी किलो चीनी 180 रुपए तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ईद उल फित्र के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह देने का फैसला किया। मार्च की तनख्वाह और पेंशन 20 मार्च को जारी कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी।
यास्मीन लारी का इसराइली इदारे का अवार्ड लेने से इनकार। अवार्ड के बारे में मालूम था, ना ही कभी अप्लाई किया। वुल्फ फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड और $1 लाख की इनामी रकम का बताया, जो ठुकरा दी। मारूफ आर्किटेक्ट की गुफ्तगू। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद सेहोनी अफवाज के गजा पर हमले, बच्चे समेत मजीद 8 शहरी शहीद। जंग बंदी में तोसी और मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज। कामयाब मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन जंग बंदी पर कोई समझौता नहीं होगा, हमास ने वाज़ेह कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीकी रियासतों में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में तलबा ने वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में मुजाहिरा किया। बर्कले और लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी, लेकिन ट्रंप इंतजामिया हमास के हामी महमूद खलील को डिपोर्ट करने पर बज़िद। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। अमरीकी अहकामात और धमकियां काबिल कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। यूक्रेन ने 30 दिन की जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इमदाद की बहाली और दोनों ममालिक के दरमियान मादनी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के तवील मुज़ाकरात खत्म। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर जवाबी फजाई हमला। रूस ने रात भर फजाई हमले किए। मेयर कीव का दावा, यूक्रेन ने जंग बंदी पर आमादगी से कबल रूस पर ड्रोन से हमले किए थे, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीका ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने वाले अफराद सख्त नताइज से बच सकेंगे। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले शहरियों के पास कानूनी तौर पर दोबारा अमरीका आने का मौका मौजूद होगा। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का पैगाम। अमेरिका का कैनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर आयद टैरिफ 50 के बजाय 25% करने का फैसला। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका बरामद की जाने वाली बिजली पर 25% सरचार्ज वापस ले लिया। अमरीकी सदर ने भी नई ब्रांडेड टेस्ला गाड़ी खरीद ली। ट्रंप ने चमकदार सुर्ख टेस्ला के लिए बगैर डिस्काउंट $80,000 अदा किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की हिमायत में खरीदी गई। अमरीकी महकमा तालीम ने 1300 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। अमरीकी कंपनी का मुलाजमीन को $10,000 और फजाई टिकट देने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी कामयाब रही। चेयरमैन ICC जय शाह का मेजबान मुल्क और टीमों से इजहार तशक्कुर। पैगाम में पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज। कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए लाहौर से दुबई पहुंच गई, जहां से स्क्वाड न्यूजीलैंड रवाना होगा। अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नायब कप्तान शादाब खान की गुफ्तगू। सबसे पहले तो काफ़ी यंगस्टर हैं और उनकी जो एनर्जी है एक यंगस्टर की काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। और जिस तरह के हमारे यंगस्टर हैं, जिस तरह के हमने उनको देखा है डोमेस्टिक में भी, जिस तरह के वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया चीज़ें। और होपफुली क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें होपफुली हमें वो चीज़ सक्सीड हो। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स की फहरिस्त में भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल की पहली और बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फाइनल में बेहतरीन इनिंग्स खेलकर 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थेक्शाना पहली पोजीशन पर बराजमान। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 6 दर्जे की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 3 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। यूएफए चैंपियंस लीग में बायरन म्यूनिख और PSG ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में लेवरक्यूसन और लिवरपूल को शिकस्त का सामना। क्वींसलैंड में शरारती बच्चों की खौफनाक अजदहे के साथ खेलने की वीडियो वायरल। वीडियो में बच्चे तकरीबन 1 मीटर लंबे अजदहे को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए छलांगे लगाते हैं। हक की आवाज से अवाम के दिलों में जगह बनाने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया छोड़े 32 साल बीत गए, लेकिन उनकी इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा और मुअत्तर।